We are Sunnah champs. We are Sunnah champs. We are Sunnah champs. We are Sunnah champs. We love Prophet Muhammad. We follow Prophet Muhammad. We are Sunnah champs. We are Sunnah champs. To follow his Sunnah, we join Sunnah camp. We are Sunnah champs. We are Sunnah champs. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें प्यार है, सुन्नतों पर अमल करने को हम सब तैयार हैं. पानी कैसे पीते थे, वो खाना कैसे खाते थे, रात को कैसे सोते थे और सुबह को कैसे जागते थे. हर पल होठों पर उनके प्यारी सी मुस्कुराहट थी. अपनी उम्मत के लिए दिल में उनके चाहत थी. प्यारे नबी ने जो भी किया है सुन्ना वो कहलाती है. सुन्नतें हमको सीखनी है और आगे भी फैलानी है. हमको बहुत ही प्यारा है हमारा सुन्ना कैंप. We are Sunnah champs. We are Sunnah champs. We love Prophet Muhammad. We follow Prophet Muhammad. We are Sunnah champs. We are Sunnah champs. To follow his Sunnah, we join Sunnah camp. हमको बहुत ही प्यारा है हमारा सुन्ना कैंप. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome in happy Sunnah team. 1, 2, peekaboo, peekaboo. I love all of you. Who is your right hand? Who is your left hand? Raise your hand for dua. Oh, my sweet Allah. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मैं हूँ आपकी हैप्पी सुन्ना टीचर डॉक्टर ज़ुबिया नौरीन और आप हैं मेरे प्यारे प्यारे से सुन्ना चैम्प्स. सुन्ना चैम्प्स, आपने एक बात हमेशा याद रखनी है और वो ये है कि जब भी हमारे सुपर डुपर हीरो हजरत मोहम्मद का जिक्र आए तो हम सब ने मिलकर क्या बोलना है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. मैं और आप मुसलमान हैं क्योंकि हम मानते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी और रसूल हैं. तो क्लास से पहले सब बच्चे मुझे एक बार अपनी प्यारी सी स्माइल दिखाइए. डू यू रिमेम्बर स्माइल इज सुन्ना. प्यारे नबी की एक हदीस है अलैकुम बिस्सुन्नती, यानी कि मेरी सुन्नतों पर अमल करें. तो हम लोग ना इस सुन्नत पर अमल करते हुए बहुत सारी सुन्नतें सीख रहे हैं. सोने की सुन्नतें हमने सीख ली, जागने की सुन्नतें हमने सीख ली, वॉशरूम जाने की सुन्नतें हमने सीख ली, वुजू की सुन्नतें, नहाने की सुन्नतें, लिबास, जूते और बाल संवारने की सुन्नतें, खाना खाने की सुन्नतें, पानी पीने की सुन्नतें, नमाज की सुन्नतें, तिलावत की सुन्नतें, दुआ की सुन्नतें, घर से बाहर जाने और आने की सुन्नतें, जुम्मा की सुन्नतें, ईद की सुन्नतें, सफर की सुन्नतें, मुलाकात और सलाम की सुन्नतें, गुफ्तगू की सुन्नतें और गुस्से पर काबू पाने की सुन्नतें. माशाल्लाह आज हम करेंगे सुन्ना नंबर 19. आर यू रेडी? Show me your thumbs up. Show me your thumbs up. Are you ready? Well done. आज हम सीखेंगे मजलिस में बैठने की सुन्नतें. जब भी हमारे घर में कोई गेट टुगेदर हो, हम इकट्ठे बैठे, उसे हम कहते हैं मजलिस. तो जब भी मजलिस हो सबसे पहले हमको सबको सलाम करना चाहिए.
اور پورا سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اگر کوئی ہمیں مجلس میں سلام کرے تو ہمیں پورا جواب دینا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر سب کو ہاتھ ملانا ہے, لیکن یاد رکھنا ہے کہ بوائز بوائز سے ہاتھ ملائیں گے اور گرلز گرلز کے ساتھ شیک ہینڈ کریں گی. پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مجلس میں بیٹھنے کی سنتوں میں ہم نے گھل مل کے بیٹھنا ہے. یہ نہیں کہ منہ بنا کے اور ناراض ہو کے اور غصے میں نہیں, بلکہ سب سے گھل مل کر رہنا ہے اور مسکرا کر ملنا ہے سب سے. اسمائل. جب آپ کسی محفل میں جائیں, مجلس میں جائیں, تو اجازت لے کر بیٹھیں کہ کیا میں بیٹھ جاؤں, اور جب آپ کو جانا ہو تو اجازت لے کر جائیں جو وہاں پہ ہوسٹ ہوں گے کہ کیا اب میں چلا جاؤں. اسی طرح یہ نہیں کہ اپنی کوئی خاص جگہ بنا لیں, بلکہ کسی بھی جگہ آپ کو ملتی ہے جہاں بھی وہاں بیٹھ جائیں. اور اگر آپ دیکھیں کہ باہر سے بڑے آ رہے ہیں تو فوری اٹھ جائیں تاکہ بڑے آپ کی جگہ پہ بیٹھ جائیں. اور اگر آپ دیکھیں جگہ تنگ ہو گئی ہے تو تھوڑا سا کھسک کے آگے ہو جائیں اور دوسروں کو جگہ دیجیے. اسی طرح ہمیں دوسروں کو ان کی جگہ سے اٹھا کر خود نہیں بیٹھ جانا, ٹھیک ہے, بلکہ جہاں جگہ ملے نا وہیں پہ بیٹھ جانا. یہ نہیں ماما یہ میری جگہ ہے میں نے ادھر ہی بیٹھنا ہے, نہیں. پیارے نبی کو جو جگہ ملتی تھی وہ وہاں بیٹھ جاتے تھے. پھر نا اگر کوئی بڑا بات کر رہا ہے نا تو غور سے سنتے ہیں. جیسے بھی ہماری آن لائن مجلس ہوگی نا, ہماری آن لائن کلاس ہو رہی ہے تو میم زوبیہ بات کر رہی ہیں تو آپ نے غور سے بات سننی ہے. اور یہ نہیں کہ بھی میم بول رہی ہیں تو آپ کاٹنا شروع کر دیں, بھائی بول رہے ہیں, ماما بابا بول رہے ہیں تو آپ انٹرپٹ کریں. انٹرپٹ بھی نہیں ہم نے کرنا ہوتا, کسی کی بات کو بالکل نہیں کاٹنا, اور نہ ہی سرگوشی کرنی ہے کان میں نہیں نہیں, دوسرے سمجھیں گے کہ یہ تو میری برائی کر رہا ہے, تو ایسے نہیں ہم نے کرنا. اور اسی طرح اگر ہمیں جمائی آ جائے تو یا کھانسی آ جائے تو یا چھینک آ جائے تو نہیں نہیں نہیں, اس طرح ہمارے منہ سے جراثیم نکل جائیں گے اور وہ تو دوسروں تک پہنچ جائیں گے, یہ ہم نے بالکل نہیں ہونے دینا, ٹھیک ہے. اور جیسے ہمیں کھانسی آئے, جمائی آئے, ہم نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے, اس طرح ہم نے کرنا ہے. اور اس کے بعد دوسروں کے دکھ سکھ میں بھی ہم نے شریک ہونا ہے. کوئی بیمار ہے اس کا پتہ کرنے جانا ہے, کوئی تندرست ہے اس کا پتہ کرنے اس کو ملنے جانا ہے, ٹھیک ہے. کوئی خوش ہے اس کی خوشی میں بھی جانا ہے اور اچھی اچھی باتیں کرنی. یہ نہیں کہ مجلس میں جا کے گندی گندی باتیں شروع کر دی, بری بری باتیں شروع کر دی, نام بگاڑنے شروع کر دیے. اور جب محفل ختم ہو تو بھی اٹھنا ہے, پورا سلام کرنا ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور دعا دینی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ آباد رکھے. اس طرح دوسروں کو خوش کر کے آنا ہوتا ہے. یہ ہے ہماری مجلس کی سنتیں. کس کس کو سمجھ میں آئی ہیں؟ شو می یور 2 thumbs up. شو می یور 2 thumbs up everyone. شاباش. چلیے اب دیکھتے ہیں ڈاکٹر زوبیہ کوثر ہمیں کیا سکھاتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لٹل سننا چیپ, دوسروں کے ساتھ گھل مل کے رہنا, مل کے کھیلنا, مل کے پڑھنا ایک اچھی بات ہے. جب سارے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں, گپ شپ کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں تو اسے مجلس یا محفل کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے مجلس میں بیٹھنے کے بھی آداب ہوتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کی سنتیں بھی بتائی ہیں کہ جب دوسروں کے ساتھ مل بیٹھنا ہے تو کیسے رہنا چاہیے. پیارے بچوں, دوسروں کے دکھ سکھ میں شامل ہونا چاہیے, گھل مل کر رہیں. جب کسی مجلس میں یا محفل میں جائیں تو سب کو سلام کریں, ہاتھ ملائیں. اسی طرح لڑکے لڑکوں کو, لڑکیاں لڑکیوں کو مسکرا کر ملیں کیونکہ مسکرانا سنت ہے. پھر اجازت لے کر بیٹھیں, اور اگر مجلس یا محفل سے اٹھنا ہو تب بھی اجازت لے کے اٹھیں. جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں. اپنے لیے کوئی خاص جگہ نہ بنائیں کہ یہاں تو بس میں نے ہی بیٹھنا ہے. مجلس کے تمام لوگوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے, خاص طور پر بڑوں کو جگہ دینی ہے. آپ بیٹھے ہیں, کوئی محفل میں آ گیا اور اس کی جگہ بظاہر نہیں پتہ چل رہی تو تھوڑا سا کھسک کر اس کی جگہ بنا لیں. اگر کوئی بیٹھا ہے تو اپنی جگہ بنانے کے لیے اس کو مت اٹھائیں. جب محفل میں بات ہو رہی ہو
तो दूसरे की बात गौर से सुने, बात ना काटे और अपनी बारी का इंतजार करें। अगर आपको जमाई, खांसी या छींक आ जाती है तो मुंह पे हाथ रख लें ताकि दूसरे लोग डिस्टर्ब ना हो। जब महफिल में हो तो सारे जी, जब महफिल में हूँ तो सरगोशी बिल्कुल नहीं करनी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमत किसी के कान में बात नहीं करनी। जी, इंशाल्लाह हम ऐसा ही करेंगे डॉक्टर ज़ूबिया। तो अब है हमारा स्टोरी टाइम। स्टोरी टाइम के लिए सब बच्चे जल्दी से आ जाएं। पोइम मैं आपको बाद में शेयर करूंगी, ठीक है? पोइम की वीडियो बनेगी ना, तो फिर हम आपके ग्रुप में भी शेयर कर देंगे और यूट्यूब पे भी शेयर कर देंगे, ठीक है? चलिए आज हम कहानी सुनते हैं, गलती का शुक्रिया। दुआ और हादिया के बाबा उम्रा करने के बाद घर वापस आए तो सब घर वालों ने उन्हें उम्रा की मुबारकबाद दी। बच्चों ने फरमाइश की कि वह उन्हें उम्रा के सफर के बारे में बताएं, लेकिन वो बहुत थके हुए थे, इसलिए उन्होंने कहा कि कल सुबह नाश्ते के बाद बातें करेंगे। इस तरह तमाम बच्चे बड़े खाना खाने और ईशा की नमाज अदा करने के बाद सो गए। अगले दिन नाश्ते के बाद सब बच्चे बारी बारी बाबा के कमरे में आए। हर बच्चा आकर पहले सलाम करता फिर बैठ जाता। वो सब जानते थे कि महफिल में आकर सलाम करना सुन्नत है। इतने में दुआ ने हादिया के कान में सरगोशी की, तो हादिया ने कहा, मजलिस या महफिल में सरगोशी नहीं करते, हमारे प्यारे नबी ने इस बात से मना फरमाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ ने इसकी बात को समझ लिया और चाचू भी कमरे में दाखिल हुए। तो हादिया ने दुआ की तरफ खिसक कर चाचू को बैठने की जगह दी। छोटा कजन हमाद दुआ के पास से गुजरकर आगे बैठने लगा तो इसकी कोनी दुआ के मुंह पर लगी। हादिया ने जल्दी से दुआ के गाल से हिलाए और हमाद दूसरे कजन से लड़ने लगा कि मुझे अपनी वाली जगह पर बैठने दी। बाबा प्यार से बोले कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि जहां जगह मिले वहीं पर बैठ जाए और किसी को इसकी जगह से मत उठाए। प्यारे हमाद, देखिए पहले आपने दुआ को कोनी मारी और अब बाकी बच्चों से लड़ रहे हैं। ये सुनकर हमाद उदास हो गया क्योंकि वो तो प्यारे नबी से बहुत प्यार करता था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप सब करते हैं और मैं करती हूँ। अब अनजाने में इसने दो सुन्नतों के उलट अमल कर दिया। इसने जल्दी से दुआ और बाकी बच्चों से सॉरी कहा, सॉरी, आई एम सॉरी। बाबा ने उम्रा की बातें शुरू की तो सब बच्चों ने बहुत वजह से सुनी। कोई भी बच्चा दरमियान में बोलकर इनकी बात नहीं काट रहा था क्योंकि यही तो मजलिस की सुन्नतें होती हैं। बाबा ने उम्रा के सफर की कहानी मुकम्मल की तो अचानक दुआ ने बहुत जोर से चीख मारी, अच्छी। सब बच्चे हंसने लगे। दुआ बेचारी शर्मिंदा हो गई। चाचू ने कहा, बेटा जमाई आए, छींक आए, खांसी आए तो फौरी कोने में हाथ से मुंह को ढांप ले, अच्छी। इस तरह जरासीम दूसरों के तरफ नहीं जाते और बच्चों महफिल में ऐसा नहीं करते। किसी की गलती पर इसे अकेले नहीं करने देते बल्कि एक दूसरे का दोस्त बनकर घुल मिलकर रहते हैं। हादिया ने कहा, आज तो ये महफिल सुन्नतों की महफिल हो गई है ना प्यार। देखिए, और क्योंकि जब हम कमरे में जमा हुए तब से अब तक हमने सारी सुन्नतें सीख ली हैं। और हमाद ने शरारत से कहा, फिर आप सबको हमारी गलती का शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि दुआ आप ही और मेरी गलती की वजह से ही आज की सुन्नतें सीखी हैं हमने। हमाद की बात पर बाबा और चाचू मुस्कुराए और सब बच्चे खिलखिलाते हुए बोले, शुक्रिया शुक्रिया, गलती का शुक्रिया। इसके बाद सब बच्चे बाबा और चाचू से इजाजत लेकर उठे। सबने बारी बारी सलाम किया और दुआ भी दी एक दूसरे को क्योंकि दुआ देना भी तो प्यारी प्यारी सुन्नत ही होता है। तो प्यारे बच्चों, आपको आज की हमारी जो सुन्नत की कहानी है सब बच्चों को कैसी लगी है? कैसी लगी आज की कहानी? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। ग्रेट। अगर आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी है तो फिर आपने मुझे बताना है वॉइस नोट में कि सबसे पहले बच्चों ने किस सुन्नत पर अमल किया। और क्या आपको याद है कि बच्चों ने हमाद की किस गलती का शुक्रिया अदा किया? और ये भी बताना है कि हमाद और दुआ की सुन्नत पर अमल ना करने पर क्या हुआ था। और ये भी बताना है कि दुआ ने सबसे पहले कौन सी सुन्नत के खिलाफ अमल किया और हादिया ने उसे क्या समझाया। और क्या आप भी हमाद और दुआ की गलती का शुक्रिया कहना चाहते हैं? अगर शुक्रिया कहना चाहते हैं तो उसकी क्या वजह है?
जी, तो अब हम आपको भेजेंगे मज़े-मज़े की वर्कशीट्स, वो मैम सारा आपके लिए बना रही हैं, मज़े-मज़े की पोएम भी बनेगी और उसके बाद आपने करना है एक चार्ट पर बड़े पत्तों वाला दरख्त बनाना है और हर पत्ते पर मजलिस की सुन्नतें लिखनी है बड़े बच्चों ने। छोटे बच्चों ने अपने घर में दोस्तों को बताना है कि मजलिस की सुन्नतें कौन-कौन सी होती हैं और आज ना अपने चाचा को, अगर वो घर में रहते हैं तो ठीक है, नहीं तो अपने चाचू को फ़ोन करके बताना है कि आज आपने कौन-सी कहानी सीखी और कहानी से क्या सीखा। इसी तरह आपने ये सुन्नतें अपने बहन-भाइयों को, कज़िन्स को सबको याद करवानी है। इंशाअल्लाह ताला सब बच्चे बोल दें इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह अगले इस फ्राइडे को फिर हम एक नई सुन्नत के साथ मिलेंगे। व्हाट अ हैप्पी डे आई फील, हैप्पी हैप्पी। व्हाट अ स्माइली डे आई फील, स्माइली स्माइली। I'm thankful to Allah. I'm shining like a sun, feeling energetic and blessed today. Assalamu alaikum. Have a good day. Assalamu alaikum. Have a good day. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.